Good morning, everyone. On behalf of FCIT MSCIT program, I, Professor Jenny Kasuria, extend a very warm welcome to everyone present over here. Data today has become a crucial asset of every organization since it is being used by business leaders for decision making. Data science, a concept to unify statistics, data analysis, machine learning in order to understand and analyze actual phenomena that is occurring with data. So let us see how this phenomena actually works. I welcome Professor Darshita Kalyani, who has 14 years of experience of teaching. She is an expert in subjects like software engineering, data analytics. She also teaches practical subjects like RDBMS and RStudio. Right? I welcome her on behalf of FCIT MSCIT program to deliver this webinar, to deliver the session. Professor Darshita Kalyani, please start with the session. Thank you, ma'am. Good morning, all of you. So today now I'm starting with data science. As ma'am has described it you what the data science is. So now I'm going to present my screen with all of you. I request all of you, if you do have any doubts, please let your doubt come out of your mind. You may either drop me a message or you can unmute your mic and please ask the doubt if you have any. Fine. So I'm going to share my screen with all of you. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So now data science, handling data to predict behavior. See, I guess everybody knows nowadays the data is very important. I have read in one of the articles of the Google that was 80% of the data, almost 80% of the data have been generated in last 1.5 year. So now we can understand how crucial it is to handle. डेटा जो जनरेट हो रहा है डे बाय डे वो कितना फास्ट जनरेट हो रहा है, कितना स्पीडी जनरेट हो रहा है, तो हमको सामने वो मैकेनिज्म चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके. सो डेटा साइंस इज अ वे टू हैंडल डेटा, right? Choosing data, extracting data from multiple sources to predict the behavior, to predict something from the data. So let's commence with that. Let me start with the basic overview. First of all, I'm going to impart you the basic knowledge, the basic overview of the data science, and then after I take you in the detail. Right, it's a concept used for making prediction based on large volume of data. See, what the basically data science is. As the name suggests, data science, that means you are going to apply certain algorithms, certain analysis over the data. Okay, you do have a large volume of data. फाइन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वो लार्ज वॉल्यूम के ऊपर हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, हम कुछ मॉडल्स बना के प्रिडिक्ट कर रहे हैं. दैट इज डेटा साइंस. सो डेटा साइंस इज ऑल अबाउट making predictions from the data. How you are going to make the prediction? You prepare model. So you may use various techniques, tools, algorithms of data science. आप data science के बहुत सारे algorithms, tools use करके मॉडल बना के आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हो, दैट इज डेटा साइंस. सो इट इज ऑल अबाउट मेकिंग मॉडल्स एंड प्रिडिक्ट समथिंग फ्रॉम द डेटा, राइट? It's a process of making organizational decision based on actual data rather than intuition and observation alone. Yeah, I guess all of you have seen the Swadesh movie, right? स्वदेश मूवी आप सब लोगों ने देखा होगा. उसमें when शाहरुख खान goes for the पंचायत, राइट? तो उसमें वो पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो उनको पूछते हैं कि आप क्या करते हो. उन्होंने ऐसा बोला कि मैं नासा में काम करता हूँ, मैं प्रिडिक्शन में, वेदर प्रिडिक्शन में हूँ. ठीक है, तो वो पंचायत के मेंबर बोलते हैं, ओ इट्स सो इजी, हमारे यहाँ भी ये काम तो मैन्युअली होता है. वो एक मेंबर, गांव के एक मेंबर को बुलाते हैं कि बताओ भाई क्या वेदर है आज का. तो वो सिंपली स्काई की ओर देखता है, स्काई की ओर देख के वो बोलता है कि आज रेन होने का कोई चांस नहीं है, क्लाउडी नहीं है. दैट इज जस्ट इंट्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन. बट एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली जब वेदर प्रिडिक्शन होता है, अगर आप डेटा साइंस के मॉडल्स यूज करके वेदर प्रिडिक्शन करते हो, तो वो मॉडल्स एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितना है वो जज करते हैं, विंड का जो
और डेंसिटी है वो देखते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ पैरामीटर्स, कुछ डेटा यूज करके सिस्टेमेटिकली प्रिडिक्शन होता है, जजमेंट पे नहीं। सिंपली मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि भाई क्लाउड नहीं है तो बारिश नहीं होगी, नॉट लाइक दैट ऑब्जर्वेशन, अ मियर ऑब्जर्वेशन कैन नॉट वर्क। अब हम जो एरा में है, ठीक है, सो मियर ऑब्जर्वेशन, मियर इंट्यूशन, वी कैन नॉट मेक अ डिसीजंस based on our observation. Rather, if we make a decision based on a particular systematic model, it would be very beneficial to us, ठीक है। तो हम जो मॉडल का यूज करके जो डिसीजंस लेते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं, सपोज मेरा वेदर फोरकास्टिंग का मॉडल है, तो वेदर फोरकास्टिंग की मॉडल के थ्रू मैं डिसीजन ले रही हूँ कि टुडे देयर माइट बी अ चांस कि 4 o'clock to 5 o'clock के बीच में हैवी रेन आने का चांस है। तो ये मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया? ये कुछ डेटा का यूज करके मैंने प्रिडिक्ट किया, डेटा का यूज करके, मॉडल का यूज करके मैंने प्रिडिक्ट किया, ठीक है। आई में अभी तो सिस्टम्स इतने, डेटा साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, इतने एडवांस मॉडल्स बनते हैं डेटा साइंस के कि नेचुरल कैलेमिटीज भी प्रिडिक्ट हो सकती हैं, राइट। So basically, before we move ahead, let me make you acquaint with the concept of the structured data and unstructured data first. Basically, data science shoots very well in the concept of the unstructured data. So now what is structured data? Anyone who can let me know? You can drop me a message, dear students. आप मुझे message drop कर सकते हैं, और इधर you can unmute your mic as well. Can you interpret from the slide shown to you? What could be the structured data? As an IT professionals, we all know, right, what is structured data and what is unstructured data. Can anyone let me know, please? What is structured data and what is unstructured data? Let's concentrate on structured data first. Anyone who can let me know, please? Let's make the session interactive, so you will also enjoy. Yes? Any of you? Yes, go ahead. Maybe structured data is like a tabular format. Absolutely. It can be in a structured form, particular like a tabular format, और एक well organized data जो भी raw material होता है, जैसे कि कुछ डेटा कुछ फॉर्म में नहीं है, उसको एक फॉर्म में लाके हम लोग प्रेजेंट करते हैं। That could be structured data. Very good attempt. ठीक है, structured data means what? See, my organization has many data, a lots of data, large volume of data. I want to get it stored somewhere. ठीक है, तो मैं डेटा स्टोर करने के लिए अगर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सिस्टम यूज कर रही हूँ तो दैट्स अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। कन्वेंशनल सिस्टम मतलब मैं टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रही हूँ, जैसे MySQL है, ओरेकल है। हम क्या करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो कंपलसरी मुझे अगर डेटा को स्टोर करना है, आई नीड टू क्रिएट टेबल फर्स्ट। विदाउट क्रिएटिंग अ टेबल आई कैन नॉट स्टोर द डेटा। दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर्ड डेटा इज। एंड इफ वी फोकस ऑन द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या है, you can store audio, video, social media post. If I want to store an email as it is, अगर मुझे email as it is store करना है तो भी मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे वीडियो क्लिप करना है, मुझे ऑडियो क्लिप करना है, ठीक है, टेक्स्ट, नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक, any of the form, in any of the form I can store, right? So see, nowadays what the trend is, the industry is moving fast, drastically from the structured data to unstructured data. As you might have read the title, if you have read the title, more than 80% of the data will be unstructured by 2020. That is our year, ठीक है। 80% जो वर्ल्ड में जो डेटा जनरेट हो रहा है उसमें से ऑलमोस्ट 80% जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट हो रहा है। सो नाउअडेज द इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स द ट्रेंड ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इतना सारा जनरेट हो रहा है तो उसको हैंडल करने के प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए। तो डेटा साइंस इज अ कॉन्सेप्ट टू हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करना, उसके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए कुछ मॉडल्स बनाना और वो मॉडल्स बना के उसके ऊपर से कुछ प्रिडिक्शन करना, ये पूरा जो है दैट इज अ कॉन्सेप्ट कवर्ड बाय द डेटा साइंस, ठीक है। मेनी टूल्स एंड अल्गोरिदम्स आर यूज। अब जो डेटा साइंस है उसमें ब्रॉडली वी यूजेस द स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड डेटा engineer to make a model. Now see, suppose if I want to make a model of data science, see, the data science is a concept,
ठीक है. If I want to implement concepts of the data science, I need to prepare algorithm of it. अगर मुझे data science का concept use करना है, I need to have algorithm, I need to have a tools for that. ठीक है. So how I'm going to prepare that algorithm? I may use certain statistics to prepare the algorithm, visualization techniques. See, यहाँ पे if you have read the line, I have highlighted certain tools which can be used to implement the concepts of the data science. R, MATLAB, Tableau, Spark. Among that, R is most popular nowadays. ठीक है. R again can be implemented using R Studio. Then you may have an Orange tool to implement the concepts of the R. Right. So what I can do with R? R का यूज करके मैं डेटा साइंस के मॉडल्स बना सकती हूँ. सी इन R there are इनबिल्ट फंक्शंस. हम यहाँ पे MSCIT में वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज अ R. ठीक है. डेटा विजुअलाइजेशन हमारा एक सब्जेक्ट है, DAV, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन. हियर वी ऑफर डेटा साइंस एज वेल, इन विच ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड इन वेरी डिटेल. डेटा साइंस के बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल में कवर करते हैं. ठीक है. R इज व्हाट, हम R में क्या सिखाते हैं कि भाई आप कैसे मॉडल्स बना सकते हो डेटा साइंस के. जो R है उसमें सारे जो फंक्शंस है वो इनबिल्ट फंक्शंस है, बट आपको फंक्शंस कैसे यूज करने हैं, कैसे पैरामीटर्स बनाने हैं, दो फंक्शंस को कंबाइन करके आप कैसे मॉडल बना सकते हो डेटा साइंस के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई गेस एवरीबडी नोज डेटा. इफ आई स्पीक 20, see a 20 could be anything. It could be rupees, it could be a date, it could be an age of a person. So I cannot make out anything concrete. I need to manipulate it. ठीक है. तो मैंने उसको मैनिपुलेट किया. इन इफ आई से एज ऑफ मिस्टर एक्स इज 20, देन इट बिकम्स अ इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स आई गेट समथिंग मीनिंगफुल फ्रॉम दैट. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस कि बहुत सारा डेटा है. ठीक है. उसमें से मेरा मॉडल बनाने के लिए मुझे कौन सा डेटा चाहिए. आई डू हैव हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स. तो मेरा मॉडल बनाने के लिए मुझे सारे 100 कॉलम की जरूरत हो वैसा नहीं है. उसमें से विच 20 columns or which 30 columns would I use for making my model effective, वो भी डेटा साइंस है. मेरे पास बहुत सारा डेटा है, उसमें से कौन सा डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, उसका मॉडल बनाना है, and then after that model can be used to make the prediction. See, nowadays the concept of the prediction is extremely useful. ठीक है. That I'm going to cover in next slide. Now data. A data can be visualized, conditioned, processed, analyzed. What is data science? If you want to analyze the data, you can impose certain conditions. It can be in the form of visualization. See, if I want to predict, my organization is running from 2001. अब मुझे प्रॉफिट को कंपेयर करवाना है 2001 से लेके 2020 तक का. ठीक है. तो यूजिंग एनी ऑफ द टूल्स, डेटा साइंस के जो टूल्स है, जैसे मैंने बताया आर स्टूडियो, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जनरेट अ चार्ट. आर स्टूडियो में मैं चार्ट जनरेट करके मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने किस ईयर में गेन किया है, मिनिमम प्रॉफिट मैंने किस ईयर में गेन किया है, मिनिमम प्रॉफिट जहाँ पे है उस ईयर में ऐसा क्या हुआ था कि भाई मेरा प्रॉफिट इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है. सो दैट इज ऑल काइंड ऑफ एनालिसिस. तो ये सारे मॉडल्स जो है वो डेटा साइंस के मॉडल है. ठीक है. नाउ दिस आर द सर्टेन एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटा साइंस. यू मे यूज डेटा साइंस इन मेडिकल, you may use data science in finance, you may use data science in risk management, customer insight, traffic control even. ठीक है. नेक्स्ट मैं जैसे जैसे स्लाइड स्विच ओवर करूंगी हम थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स इसके कवर करते जाएंगे. ठीक है. नाउ वी डू हैव अ सर्टेन वैलिड रीजंस कि भाई हम डेटा साइंस के ऊपर इतना क्यों फोकस करते हैं. ठीक है. गूगल, Amazon, Netflix, they all are using data science. अभी मैंने एक टर्म के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया था which is prediction. So nowadays the prediction is how important the prediction is and how important the data science is in using this in making this kind of models. And give you a very simple example कि आप Netflix पे कुछ मूवी देखते हो, let's assume कि आपने कोई कॉमेडी मूवी देखा Netflix पे, तो you might have noticed कि राइट हैंड साइड पे आपको रिकमेंडेशंस मिलते हैं.
तो आपने जो मूवी रिक्वेस्ट किया है, सपोज आपने कॉमेडी मूवी रिक्वेस्ट किया है, तो नेटफ्लिक्स आपको राइट हैंड साइड पे कितने सारे अलग अलग कॉमेडी मूवीज के रिक्वेस्ट देता है, तो यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दैट एज वेल। तो ये क्या हुआ, प्रिडिक्शन, कि कस्टमर को, क्लाइंट को कॉमेडी मूवी पसंद है तो दूसरे कॉमेडी मूवी भी वो आपको रेकमेंड करता है। तो उसने प्रिडिक्ट किया कि कस्टमर को ये टाइप का मूवी अच्छा लगता है, तो उनको दूसरे कॉमेडी मूवीज का भी हम रेकमेंडेशन देते हैं। बट ये प्रिडिक्शन कैसे हुआ, ये रेकमेंडेशन कैसे जनरेट हुआ, यूजिंग द मॉडल ऑफ द डेटा साइंस, राइट। Amazon is also using data science के model Amazon use करता है। Recently I have read certain articles of data science in which I have gone through certain concepts कि भाई how Amazon is using data science. Let me tell you how Amazon is using data science. ठीक है, Amazon most of the time Amazon uses the item based recommendations. Now what is item based recommendations? If you have purchased a shoes, ठीक है, so you might have noticed कि as soon as you click on a particular brand of shoes, immediately you are given the notification of shiner, socks. How? तो how Amazon comes to know कि भाई शूज के साथ में कस्टमर को सॉक्स की भी जरूरत पड़ सकती है, शाइनर की भी जरूरत पड़ सकती है। सो दैट इज द मॉडल जिसने प्रिडिक्ट किया कि ये आइटम के साथ ये आइटम की भी जरूरत पड़ सकती है। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ W Mart, Walmart, which is a chain in US, तो the W Mart has 15 लाख प्रोडक्ट, 15 लाख प्रोडक्ट है। तो जस्ट इमेजिन के 15 लाख प्रोडक्ट में से वो प्रिडिक्ट करना कितना मुश्किल होगा। मैं मैन्युअली प्रिडिक्ट करने जाऊँ तो 15 लाख प्रोडक्ट है मेरे पास कि कस्टमर ये प्रोडक्ट अगर परचेज करता है तो उसके साथ में उसको ये प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। बट अगर मैं सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करती हूँ, मैं कोई मॉडल बनाती हूँ, सो दैट इज द मॉडल डेटा साइंस इज। डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट यूज करके आप ऐसे मॉडल्स बना सकते हो, इफ द कस्टमर परचेसेस दिस then customer might interested in this as well. If the customer has requested a laptop, उसने Amazon पे लैपटॉप का रिक्वेस्ट डाला, तो लैपटॉप के साथ उसको कौन कौन से अलग प्रोडक्ट की जरूरत पड़ सकती है, मे बी माउस, राइट, मे बी हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की उसको जरूरत पड़ सकती है, उसको हेडफोन्स चाहिए, तो द एसेसरीज। So how I have given that recommendation, that is the model of the data science के data science के मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया कि ये प्रोडक्ट के साथ इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, so how this data science can be used, see this is the thing. See, I have created one CSV file, comma separated value. ठीक है, here I am just highlighting how the data science model is implemented in R, जो हम यहाँ पर ऑफर करते हैं। हम यहाँ पर यही सिखाते हैं कि आप R का यूज करके मॉडल्स कैसे बना सकते हो अलग अलग डेटा साइंस के, विच माइट हेल्प यू अ लॉट इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो सपोज ये मैंने एक फाइल है जिसको मैंने R में इंपोर्ट किया। ओके, R स्टूडियो में इनबिल्ट वो फंक्शनलिटी अवेलेबल है कि आप MySQL के डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, आप CSV डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने कुछ CSV फाइल का जो डेटा है that I have imported in the R using the inbuilt functions of the R, I just need to pass the parameters। ठीक है, मुझे कौन से पैरामीटर के ऊपर चार्ट जनरेट करना है वही मुझे पास करना है। मुझे कौन से टाइप का चार्ट क्रिएट करना है, पाई चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट। ठीक है, there are various charts according to your usage, according to the requirement you can choose the option and R Studio will do the rest of the things for you. ठीक है, the ready made charts will be generated and you can simply have the reports on your hand। ठीक है, और विद इन अ फ्यू मिनट्स डेटा साइंस के मॉडल का आप इंपॉर्टेंस देखो, विद इन अ फ्यू मिनट्स यू हैव अ रिपोर्ट्स ऑन योर हैंड। फॉर वो रिपोर्ट्स का यूज करके आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। So this is your data science जिसमें भी इन्वॉल्व स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, यस, स्टैटिस्टिक्स का जो नॉलेज होना डेटा साइंस के लिए, यस, द प्राइमरी कंसर्न इज स्टैटिस्टिक्स। हम यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट्स भी कवर करवाएंगे आपको। ठीक है, दूसरा मैं अगर आपको डेटा साइंस के प्रिडिक्शन का एग्जांपल दूं, ठीक है, तो सिंपली मैंने गूगल ओपन किया इन विच आई एम टाइपिंग डेटा साइंस। सिंपली मैंने गूगल पर क्या टाइप किया, डेटा साइंस में टाइप कर रही हूँ। ठीक है, तो यू माइट हैव सीन
सर्टन टाइम्स आपने ये शायद देखा होगा कि मैंने डेटा साइंस के कुछ आर्टिकल्स रीड किए, कुछ वीडियोस मैंने देखे, एंड देन आफ्टर मैंने शट कर दिया लैपटॉप, एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं मेरा अपना कोई काम कर रही हूँ, मैं कोई दूसरा आर्टिकल रीड कर रही हूँ, मैं अपना मेल चेक कर रही हूँ, तब शायद आपने नोटिस किया होगा कि आपको एक नोटिफिकेशंस मिलता है कि वी आर ऑफरिंग डेटा साइंस कोर्सेज, और डेटा साइंस के जो कोर्सेज है उसका नोटिफिकेशन मिलता है। या माइट बी पॉसिबल कि सेकेंड टाइम जब मैं कोई मूवी रिक्वेस्ट करती हूँ तो यूट्यूब पर वो मूवी आने से पहले मुझे डेटा साइंस के कुछ वो वीडियोस वहां पर बाय डिफॉल्ट शो करता है, विच आई हैव नेवर रिक्वेस्टेड। फेसबुक पे मैं लॉग इन करूँ तो फेसबुक में डेटा साइंस की रिलेटेड पोस्ट मुझे दिखेगी, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेटा साइंस। ठीक है, ये सारे मॉडल्स जिसने प्रिडिक्ट किया कि भाई इस कस्टमर को इसमें इंटरेस्ट हो सकता है, तो जैसे मैंने फेसबुक पे लॉगिन किया मुझे डेटा साइंस की पोस्ट, आई कैन सी द पोस्ट ऑफ द डेटा साइंस। जैसे मैं यूट्यूब पे कोई मूवी रिक्वेस्ट करती हूँ तो मूवी कमेंट्स होने से पहले आई मे शोन सर्टेन वीडियोस ऑफ द डेटा साइंस। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट वी फोकस, yes, data science and big data. Now, can anyone let me know what is big data? As the name suggests, you might interpret from the name. What is big data? Any of you who can suggest me? कोई मुझे big data का suggest कर सकता है क्या है? Any of you? See, I don't want कि मुझे exact answer चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, just try it out, dear students. सिर्फ try करो, मुझे exact answer चाहिए, you might be wrong, that's okay. But just let make the session interactive. Tell me what is big data. Any of you? If you don't feel comfortable in speaking, you can write a message. ठीक है, आप मुझे चैट के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकते हो। Any of you? What is big data? Okay, so I proceed further. Now what is big data? The name suggests बहुत सारा डेटा, टेराबाइट्स ऑफ डेटा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में 10 करोड़ रिकॉर्ड्स है मेरे। सो वो सारे रिकॉर्ड्स में सिंपली ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सिस्टम से अगर हैंडल करने जाऊंगी तो इट वॉन्ट बी एन इफेक्टिव अप्रोच, राइट। अगर मैंने सिंपल जस्ट इमेजिन कि आई डू हैव अ 1 करोड़ ऑफ डेटा एंड जस्ट आई फायर अ क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, व्हाट विल बी द रिजल्ट? इट विल गेट हैंग्ड। ठीक है, हैंग हो जाएगा। सो बेटर है कि वी नाउ यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बिग डेटा। अगेन आई एम टेलिंग यू, द बिग डेटा इज अ कॉन्सेप्ट, उसके टेक्निक्स अलग अलग होते हैं। सो डेटा साइंस क्या है? इट्स एन अप्रोच टू प्रोसेस बिग डेटा। बहुत सारे डेटा के ऊपर से बहुत सारे डेटा को आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस। वो डेटा साइंस है। डेटा साइंस के टेक्निक्स आप डेटा क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो ना। व्हाट इज डेटा क्लीनिंग? व्हाट इज डेटा क्लीनिंग? एनी ऑफ यू हु कैन लेट मी नो? Which we better know, it is better known as noisy data. Agar if anyone who can let me know, what is data cleaning? Any of you? To remove unnecessary data, to remove blanks. Certain times we remove the null values, right? So that is data cleaning. But how it is done? Just you need to run a script. Just you need to use the model of the data science, and the rest of the thing is done by the data science. ठीक है, मैनुअल एफर्ट्स बहुत ज्यादा रिड्यूस होते हैं डेटा साइंस अप्रोच से। So in short, data science is all about, what we can say is this. Before we move ahead, just one thing again I let you know, you can use the concepts of the data science in nearest neighbors as well. What is nearest neighbor? जो नियरेस्ट नेबर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी हम डेटा साइंस के टूल्स एंड अल्गोरिदम्स यूज कर सकते हैं। आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर दैट। ठीक है, कि सपोज एट अ पर्टिकुलर प्लेस अनफॉर्चुनेटली इफ द फायर अकर्स, एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर फायर होती है, ठीक है, तो वहां से अब जो फायर हेल्पलाइन है वहां पर कॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो कॉल कहाँ रिडायरेक्ट होता है? वो लोकेशन के सबसे ज्यादा नजदीक जो फायर स्टेशन होगा ना, बाय डिफॉल्ट वहीं पे कॉल रिडायरेक्ट होगा और आपको वहीं से फास्ट सर्विस मिलेगी। तो ये क्या हुआ? डेटा साइंस। ठीक है, अल्गोरिदम को कैसे पता चला कि ये लोकेशन के सबसे ज्यादा नजदीक ये फायर स्टेशन है?
Got the point? So there's a data science. Ola, Uber, data science. ठीक है, ओला उबर कैसे यूज करते हैं नियरेस्ट नेबर. सपोज मैंने उबर में एक टैक्सी रिक्वेस्ट किया, आई एम स्टैंडिंग एट द लॉ गार्डन. ठीक है, लॉ गार्डन जीएलएस कॉलेज के, जीएलएस यूनिवर्सिटी के गेट पे मैं खड़ी हूँ. ठीक है, मैंने सिंपली एक रिक्वेस्ट डाला उबर को, तो वो उबर मेरी नरोडा से या मेरी मणिनगर से नहीं आने वाली है. जो नियरेस्ट जो उबर का टैक्सी होगा वो मुझे रिडायरेक्ट होगा. सो दैट्स द नियरेस्ट नेबर. 108 मेडिकल इमरजेंसीज. ठीक है, क्या है सारे मॉडल्स, ये सारे मॉडल्स क्या है कि मेरी रिक्वेस्ट अगर इमरजेंसी हुई, ठीक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आपने 108 पे फोन किया, तो सबसे नजदीक जो 108 होगी वो आपके लोकेशन पे पहुंचती है. ठीक है, दिस ऑल इज व्हाट नियरेस्ट नेबर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो ये सारे नियरेस्ट नेबर कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें आप डेटा साइंस के टूल्स, एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हो. ठीक है, again you can use the data science for the classifications as well. What is classification? ठीक है, any of you who can let me know classification? Dear students, please respond. ठीक है, आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा. What is classification? I guess this terminology is very simple. What is classification? Any of you? Okay, now let me tell you what is classification. Okay, suppose a particular IT company has taken a decision कि 5 किलोमीटर की रेडियस के बाहर जो एम्प्लॉइज रहते हैं, हमको उनको एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है. तो आपको एम्प्लॉइज के 2 क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, 2 क्लासेस बनाने पड़ेंगे. एक क्लास ऐसा होगा जिसमें क्या कवर होगा कि एम्प्लॉइज हु रिसाइड विद इन द 5 kilometer radius, and the class, another class of the employee would be who are residing in the radius of the, sorry, जो 5 किलोमीटर की रेडियस के बाहर है. तो हमने ऐसे क्लासीफाई किया. अब जिसको ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी देना है, मेरे पास वो डेटा आ गया, तो दैट इज अ डेटा साइंस कि बहुत सारा डेटा है. मेरे पास 10 करोड़ एम्प्लॉय का डेटा है, तो 10 करोड़ एम्प्लॉय का डेटा, तो उसमें से कितने एम्प्लॉय को मुझे क्या फैसिलिटी देनी है. ठीक है, सर्टेन टाइम्स माइट बी पॉसिबल द पर्टिकुलर स्कीम इज लॉन्च फॉर द फीमेल एम्प्लॉयज. कई बार वो फीमेल एम्प्लॉइज के लिए स्कीम लॉन्च होता है, या कई बार एज स्पेसिफिक कोई स्कीम लॉन्च होता है, या लोकेशन स्पेसिफिक कोई स्कीम लॉन्च होता है. तो मुझे वैसे वैसे क्लासिफिकेशंस करने पड़ेंगे. तो डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट का यूज करके आप ऐसे क्लासिफिकेशंस भी बना सकते हो. बहुत सारा डेटा है. मैं आपको सिंपल बोलूं कि आपके क्लास में लेट्स डू वन थिंग कि मुझे क्लासिफिकेशन करना है बेस्ड ऑन द जेंडर, तो बॉयज एंड गर्ल्स मैन्युअली कितना इजी है, राइट? बिकॉज आपके क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, बट व्हाट इफ 60 लाख 10 करोड़, तब क्या होगा? ठीक है, वो मैन्युअल मैन्युअल क्लासिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, राइट? अगर हम कोई शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, राइट, तो यू माइट हैव नोटिस्ड कि भाई ग्रोसरी का एक सेक्शन अलग होता है, आउटफिट का सेक्शन अलग होता है, फुटवेयर का अलग होता है, कॉस्मेटिक्स का अलग होता है. तो हाउ दे हैव डन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स कि भाई अगर मुझे ग्रोसरी है तो ग्रोसरी के रिलेटेड जितने भी आइटम्स है वो एक ही कंपार्टमेंट में आ जाने चाहिए. गॉट द पॉइंट? सो ऐसे ही मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था डब्ल्यू मार्ट का, तो डब्ल्यू मार्ट में 15 लाख प्रोडक्ट है, तो 15 लाख प्रोडक्ट का उनको प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा. सो दैट इज डेटा साइंस. डेटा साइंस वो प्रिडिक्ट करके देगा कि ये प्रोडक्ट ये क्लास में आ सकता है. ठीक है, वो मैन्युअल प्रिडिक्शन उतना इफेक्टिव नहीं होगा. सो दैट इज द डेटा साइंस. क्लियर एवरीबॉडी? ये सारे कॉन्सेप्ट्स डेटा साइंस के हैं. फाइन. सो या बिफोर आई कंक्लूड द सेशन, ठीक है, दिस is what we offer at GLS FCAIT. We do offer web programming. We do offer mobile computings. Please view this so you can have a better idea of this. Then e-commerce and data analytics as well. We do offer IoT, Internet of Things program as well.
we have a PGDCA program as well. Thanks very much. Any of you have any query? Most welcome. हेलो मैम। Yes. मैम डेटा साइंस के टूल्स में पाइथन आ सकता है? Yes. और डेटा साइंस के मॉडल्स बनाने के लिए आप पाइथन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। और मैम MSCID कब से स्टार्ट होने वाला है? एनी आइडिया? सॉरी, MSCID कब से स्टार्ट होने वाला है? एनी आइडिया? हाँ, या दैट आपको रचना मैम या विनीता मैम यहाँ से आपको रिडायरेक्ट कर देंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, रचना मैम, विनीता मैम, प्लीज। ओके, थैंक यू मैम। Hello. हाँ, Hello. Am I audible? यस मैम। Yeah. Good morning, everybody. We will be starting our session of MSCIT approximately by July 20. That's a tentative date. Will be started by July 20. Any other queries? So you're welcome. ऑनलाइन होगा क्या सिर्फ कॉलेज ही स्टार्ट होने वाला है? Yeah, as per the government regulation, we will starting with the online sessions. And as we will get a permission, we may class with a physical class, but we will wait till we get a government regulation. थैंक यू मैम। any queries regarding data science? डेटा साइंस रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, यू आर मोस्ट वेलकम। Hello. हेलो। Yeah, I think Parth want to interact. His, Yes. Yeah. Go ahead. Yeah, he is having a question in his chat that data science opportunity in MSCIT. See, in MSCIT डेटा साइंस में हम आपको किस तरह से आप मॉडल्स बना सकते हो, राइट। डेटा साइंस काफी डिटेल में हम आपको स्टडी करवाते हैं कि किस तरह से आप मॉडल्स बना सकते हो, इंडस्ट्री में कहाँ यूज होता है। डेटा साइंस के अलग अलग कॉन्सेप्ट जैसे लीनियर रिग्रेशन है, रिकमेंडेशन बेस्ड इंजिन्स है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एंट्रोपी, ऑल दैट वी आर गोइंग टू कवर। जो एडवांस कॉन्सेप्ट है डेटा साइंस की, जिसका यूज करके इंडस्ट्री में एल्गोरिदम्स और मॉडल्स बनते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। और वही प्रैक्टिकल्स में भी हम आपको बताएंगे कि वही कॉन्सेप्ट्स का आप एग्जैक्टली प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। जैसे आर्ट स्टूडियो है, पाइथन है, वो सब हम आपको यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, आर्ट स्टूडियो में आप कैसे मॉडल्स बना सकते हो, पाइथन लैंग्वेज हम आपको सिखाते हैं, राइट। I would like to add upon Darshita ma'am. There are job opportunities as a data scientist, data engineer, and as you might be knowing that the data science and data engineer, big data analytics are very much trending in this current market right now. Yes, So absolutely. you may also go and search for job opportunities in data science. So you may get a survey that the highest paid salaries are now in the field of data science. Data science, absolutely. So you can just Google it and see the survey also. और डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट, यस, सर्टेन डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। डेटा माइनिंग क्या है कि डेटा में से आप मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, दैट इज डेटा माइनिंग। के जैसे ये मेरे पास माइन है, ठीक है, तो गोल्ड माइन में पहले क्या होता है, कॉल होता है, ठीक है, तो उसको मैं डिग करती हूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके उसमें से गोल्ड माइन करती हूँ। तो वैसे ही मेरे पास जैसे बहुत सारा डेटा है, तो उसमें से मीनिंगफुल डेटा कौन सा है, तो डेटा माइनिंग के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डेटा साइंस में कवर हो जाते हैं। यस, एनीवन? Hello. Yes. Hello. Yes, you are audible. Please go ahead.
Go ahead. हेलो, Yes, go ahead. Please go ahead. आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। I'm not audible. Hello. You're हाँ audible. मैम, Please go ahead. आवाज नहीं आ रही आपकी। Okay. Now, am I audible? यस यस Yes, please go ahead. मैम, ये डेटा साइंस से वो क्या एमएससी आईटी में आता है, वो कोई एमसीए में कुछ? MSc IT में भी आता है, MCA में भी आता है. अच्छा ऐसा ऐसा। Yes. हाँ तो मैम, ओ I जेएलएस would का like, मतलब? sorry to interrupt. I would like to add upon to Manish and Parth Soni, who have asked that regarding MSCIT and MCA. As ma'am has specified that we are having we are having data science and MCA and MSCIT both, but we are providing a specified track for the data science. In the big data track, yeah, big data analytics track is being provided as a specialization in MSCIT. So wherein you will be learning more trends, tools regarding to data science. And talking about the opportunities, as we are giving a specialized track in MSCIT, so you can more explore the subject and explore the tools in that program. मैम which one is better, एमएससी आईटी और एमसीए? Both the one is having a equal opportunity. If you can see, if you can go through the curriculum which is provided in our on the website, that is GLS University AC.in, both the program are having the equal opportunities. And in perspective of job opportunities also, both the degree and both the program are given the equal job opportunities. But the thing is that what skill you develop, what specialization you achieve leads to your job opportunity and your talent. And ओके मैम। मैम एमसीए है वो का 3 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर? it is a 2-year course of MCA. Both the degrees are of 2 years. एमएससी आईटी भी 2 इयर्स की रहेगी ना? Sorry? Yes. एमएससी 2 इयर्स ही रहेगी ना Yes, डिग्री yes. एमएससी आईटी का? Yeah, 2-year course. Parth Soni, you can get my number from helpline number which is mentioned on website. Is Okay, Parth there? And there is a difference in the fees also. It's for MSCIT, it is around 37,500 for one term, and for MCA, it is 50,000 plus for one semester. Any query regarding to admission, or those who have regarding to placement or admission or curriculum, you can discuss right now. Anyone who want to interact? हेलो मैम। Okay. So before, हेलो hello. Yes, हेलो मैम। Manish. हाँ मैम, वो मैंने एमसीए में एडमिशन लिया हुआ है ऑनलाइन जेएलएस यूनिवर्सिटी में। Okay. हाँ तो मैम उसका मुझको मतलब एसीपी थ्रू होगा का, मतलब डायरेक्ट ही उसका प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है? आपने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया होगा ना MCA के लिए? हाँ हाँ, इंक्वायरी फॉर्म मतलब उस साइट वेबसाइट से मैंने इंक्वायरी फॉर्म एमएससी आईटी के लिए और एमसी के लिए दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है। या MC CMAT क्लियर है आपका? हाँ मैम, सीमेट क्लियर है मेरा। ओके, आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा, वेबसाइट पे दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर, उस पे आप कॉल करिएगा। एंड MCA का जो एडमिशन होता है वो ACPC के थ्रू होता है। हाँ वही ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्या एसीपीसी थ्रू होगा। या मैं इसीलिए बता रही हूँ, यू कैन कॉल मी ऑन द हेल्पलाइन नंबर एंड वी कैन टॉक इन डिटेल regarding the procedures. ओके ओके मैम, थैंक यू।
Okay, Parth is asking that what is the average placement and highest placement of MSCAT and MCA, right? The average placement for the current semester, which just passed on this in June 2020, that is, they had a placement record of more than 90%. And all are being placed in a very good company, and the average salary or the average package being offered was more than 4 lakh. Any other query? Anybody who want to ask anything regarding admission, placement, classes? Okay, so before ending the session, I would like to inform that those who have done their provisional admission, those who have paid the fees for the provisional admission, will be receiving an email from our side mentioning the date when we will be starting our session and the schedule for the sessions. But the approximate date of commencement of the semester will be July 20. Okay, Darshita ma'am. Thank you. Thank you so much, students, for being here. Thank you. I end the webinar over here. Thank you so much. Hello. Hello. Manish, Yes, ma'am. yes, any question? Hello, ma'am. Yes, ask. आवाज आवाज आपकी वॉइस नहीं आ रही है. Yes, Manish, हेलो. बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है.